जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। मैं आप जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50-60% ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂਗੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਈ शुरुआत और गुरु चरणों की महाकृपा के साथ होगी। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆਈ ਆ। ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਦਾਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਬਦਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੜਾਇਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੀਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾਤਿਆ। ਉੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਮੱਥੇ ਉਮੇਟਦਾ, ਕਲਮ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣ ਦਾਤਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर पल का शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और आज है 2025 का अंतिम दिन। कल नया साल 1 जनवरी 2026। कितनी जल्दी ये साल बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कब जनवरी आती है, धीरे धीरे कब दिसंबर आता है, फिर जनवरी आती है। ऐसा लगता है जैसे साल बहुत छोटे हो गए हैं। और जब नया साल आता है तो नई उमंगें, नई तरंगे, सब कुछ नया नया अपने आप लगता है।
खुशनुमा माहौल होता है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। संगत जी, गुरु जी के संदेशे हमें बराबर मिलते हैं और ये संदेशे हमारे लिए टेलीपैथी का काम करते हैं। हमें पता चलता है हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है। ये हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और देते हैं एक सुनहरे भविष्य का पूरा होने का एक ड्रीम ड्रीम सच होने का एहसास। हमारे मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं उठती हैं, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, है ना। और जब उसी से रिलेटेबल हमें कोई संदेशा मिलता है तो हम बहुत झूम उठते हैं, खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि अब तो ये हमारा सपना सच में सच होने वाला है। और कई बार हमारे सपने सच में सच होते हैं। इसलिए सच होते हैं संगत जी क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं, हम सब्र करना सीख जाते हैं। यदि हम सब्र नहीं कर पाते तो हम जल्दबाजी में बहुत सारी गड़बड़ें कर देते हैं। इसीलिए गुरु जी का आज का संदेशा भी कुछ इसी तरह से है संगत जी। गुरु जी कहते हैं, कभी कभी सब्र कर दे हार जाते हो कि हुन और इंतजार नहीं हुंदा। जल्दबाजी विच लीता फैसला कभी भी सिरे नहीं चढ़दा। जद तू बुरा कर्म कर रहे होते हो जद तुम बुरा कर्म कर रहे होते हो तो इन्नी समझ नहीं होती कि बाद में हमें इसका क्या फल मिलेगा। और हुन परेशान हुंदा है, रब तेरा कर्मानु कट भी रहे हैं और उसमें भी हमें सब्र नहीं हो रहा। करना पड़ेगा, उस मालिक की कृपा पाना चाहते हो तो सब्र करना होगा। हमें मालिक का नाम लेते लेते ये वक्त कट जाएगा और फिर होगी तेरी जिंदगी में एक प्यारी सी सुबह जो जमाने भर की खुशियाँ रब तेरी झोली विच पा देंगे। शुक्र कर, सिमरन कर, सत्संग कर, सेवा कर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम केवल अपना काम करो, अपना कर्म करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने 2026 में 3 जनवरी को मुझसे सत्संग करवाने की सेवा का संकल्प करवाया। और ये सत्संग संगत जी 3 जनवरी को हो रहा है, जिसे हम सब मिलकर कर रहे हैं। हाँ जी, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, जो भी गुरु जी की यहाँ पर संगत है, मुट्ठी भर संगत, उनके पास ये संदेशा पहुँच रहा है। यदि आप भी इस सत्संग में अपनी कुछ सेवा देना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा इसी नंबर पर 9548829997 पर। आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, जल प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, कोई सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिलेंगी ब्लेसिंग्स, है ना। गुरुजी सब देख रहे हैं कि आप जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव सत्संग है संगत जी, मंथली सत्संग है सर्वदा भला। और गुरु जी की कृपा से ही ये सत्संग हो रहा है। गुरु जी करेंगे कल्याण, सबका कल्याण करेंगे गुरु जी। हम सब मिलकर यूं ही सत्संग करते रहें। मैं पूरा अपना हार्ड वर्क देती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ इस सत्संग के लिए और खुशी से झूम उठती हूँ। ये मुझे बहुत खुशी मिलती है सत्संग करवाने में। मेहनत तो बहुत होती है क्योंकि छोटा घर है तो फर्नीचर को भी इधर से उधर सरकाते सरकाते बहुत हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट इतना होता है गुरु जी के आने का। गुरु जी आते हैं और सच में बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। आप कहीं भी बैठे हों संगत जी, देश में विदेश में, यहाँ से आपके पास ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचेगी। मेरा काम केवल इतना है कि गुरु जी के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करूं कि गुरु जी जिस भी संगत ने आपके लिए यहाँ पर जो भी सेवा भेजी है, चरणों में जो भी सेवा भेजी है, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद की, आप उससे स्वीकार करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत निराली है। वो किससे क्या सेवा लेना चाहते हैं, कहाँ क्या करवाना चाहते हैं, वो तो गुरु जी ही जाने। मैं तो केवल उनके आदेशों का पालन कर रही हूँ। मुझे हुक्म हुआ है यहाँ पर कि मैं सर्वदा भला सत्संग सबके कल्याण के लिए करवाऊँ, महीने में एक बार। और संगत जी, आपके सत्संग मुझे यहाँ पर मिलते हैं जो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुँचते हैं ब्लेसिंग के फॉर्म में। जहाँ पर भी गुरु जी का हुक्म होता है कि ये वाला सत्संग उठाकर आगे पोस्ट करना है, मैं पोस्ट करती हूँ। संगत जी, आप निराश मत होइएगा यदि आपका सत्संग यहाँ पे अपलोड ना हो, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जो पावरफुल सत्संग हैं उनको याद कीजिए, जो भी कोई घटना है उनको याद कीजिए और ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में थोड़ा ज़ोर से बोलते हुए भेज दीजिएगा 9548829997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। और मैं सोनाटी आप सभी के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि हे गुरु जी महाराज,
जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप उनको खूब खूब हेल्थ ब्लेस करो, वेल्थ ब्लेस करो, सबका कल्याण करो। संगत जी, आपने यदि अभी तक भी गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और संगत जी, कई बार ऐसा मैसेज आता है कि आंटी हमें रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती है ना। कभी कभी कमेंट पढ़ लेती हूँ तो उसमें भी आता है कि आंटी रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती। तो संगत जी, अगर रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप केवल सत्संग को सुन लीजिए। सुनने से भी गुरुजी आपके बहुत सारे कर्म काटते हैं। और आप चाहें तो आपका जो सत्संग है, आप जैसे लिखते हैं ना, तो आप टाइपिंग करके अपने कमेंट में ही अपना सत्संग को आप लिख कर इसमें मैसेज में ही वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी गुरुजी के चरणों में आपका सत्संग पहुँच जाएगा, है ना। आप मुझे रिटर्न में मत भेजिएगा संगत जी। आप जब भी आप सत्संग को रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजते हैं कि आगे आपका सत्संग रिकॉर्डिंग में जाए और सारे संगत परिवार के साथ साझा हो, तो आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करके ही भेजना होगा, है ना, जिससे कि आपका सत्संग अपलोड हो जाए, है ना। और अब सुनते हैं हम आज के प्यारे प्यारे सत्संग और लेते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और संगत जी, आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अमृत वेले का शुक्राना 31 दिसंबर 2025। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना ये है संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बोला था, एक प्रॉपर्टी ली थी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने पुरानी प्रॉपर्टी सेल करवाई थी, नई दिलवाई थी एक प्लॉट। उसकी डिमार्केशन की प्रॉब्लम चल रही थी, गुरु जी ने वो सॉल्व करवाई। गुरु जी से अरदास की थी, उसकी बाउंड्री का काम चल रहा था, तो गुरु जी की कृपा से वो बाउंड्री का काम ख़त्म हो गया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शंकर जी, अगर पूरे साल की बात करें, ऐसे तो हर दिन गुरु जी की रहमत होती है। कभी हमें समझ आती है, कभी नहीं आती। गुरु जी, आपका उन सब रहमतों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इस साल में जो मेरी प्रॉपर्टी पुरानी बिक नहीं रही थी उसको सेल करवाया, पुरानी गाड़ी को सेल करवाया। आपने नई गाड़ी, नई प्लॉट की बख्शिश दी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करवाई, जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो निकलवाई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। महाराज घर से सारी नेगेटिविटी दूर की, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे हॉस्पिटल में रेनोवेशन करवाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। घर के सब परिवार मेंबरों पे अपनी बख्शिश की, निरोगी काया बख्शी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके पोते पोती, उनको निरोगी काया बख्शना और उनका फ्यूचर सेट करना, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मेरे को रोज़गार बख्शना, कंसल्टेंसी का काम चालू करवाना, उसका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आपकी पोती, उसकी शादी करवाना गुरु जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे घर में। संगत जी, उसका मैंने सत्संग शेयर किया था। गुरु जी की पोती, गुरु जी ने शादी करवाई। संगत जी, उसका आज 1 साल से ऊपर हो चुका है शादी का। गुरु जी ने ऐसी शादी करवाई है संगत जी कि लोग अभी भी उसकी मिसाल देते हैं। जहाँ
बड़ी-बड़ी शादी में भी जाते हैं तो ये बोलते हैं वैसी शादी हमने कभी देखी नहीं, जो अरेंजमेंट और जो खाना वहाँ मिला। संगत जी, इसमें सब गुरु जी की रहमत है। और सबसे बड़ी बात, वो शादी कैसे फिक्स हुई, कैसे हुई, उसका कैसे खर्चा हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता शंकर जी। गुरु जी ने खुद करवाया है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रहमतें हैं जो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो जाने अनजाने में हमें संकट से, कई संकटों से बचाया गुरु जी ने, महाराज ने कई भयानक बीमारियों से बचाया। बहुत ऐसे कष्ट जो हल्के में काट दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आपसे अरदास करता हूँ गुरु जी महाराज, ऐसे ही सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, सब पे अपनी मेहर करना। अगले आने वाले नए वर्ष पे सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरु जी महाराज, सबकी अरदासें पूरी करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा गुरु सहाय। जी शुक्राना जय गुरु संगत जी। जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा ये 30 तारीख एकादशी का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के आज्ञा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले हम गुरु मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत सारा आ रहा है मैसेज कि कुड़िए तू अपना ब्लेसिंग जल्दी शेयर कर, तुम अपना सत्संग जल्दी शेयर कर और अपनी ब्लेसिंग ले ले, क्योंकि तेरे लिए बहुत सारा खुशी लेकर मैं आ रहा हूँ नए साल में। तो गुरु जी, मुझे पता है कि आप अपनी बेटियों के लिए नए साल में सारी संगतों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग ला रहे हैं गुरुपा, और आप ही तो हैं जो हम संगतों का इतना ख्याल रखते हैं गुरुपा। हाँ गुरुपा, मेरे बहुत सारे बिगड़े काम आप बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि मेरे काम बन रहे हैं। मैं जिस चीज़ में पहले एकदम मतलब लगता था कि मेरा वो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मेरा वो काम होने लगा है। जो मेरे पैसे लिए थे वो मेरे फ़ोन उठा नहीं रहे थे, संपर्क नहीं कर रहे थे, अब मेरे फ़ोन उठाने लगे हैं। तो गुरुपा, ये सारा आपका चमत्कार है, माँ काली का चमत्कार है, महावीर जी का चमत्कार है, शंकर बाबा तो आप ही हो। तो गुरुपा, आप सभी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना है, जो आप लोगों ने मिलकर मेरा इतना बड़ा सारा काम सुलभ कर दिया गुरुपा। जो लग रहा था मैं अटक गई हूँ, मैं फंस गई हूँ। संगत जी, इतने दिनों से मेरे मतलब 5 साल से या 7 साल से मेरे काम फंसे हुए थे, और धीरे धीरे मेरा काम अब जा कर के इस लास्ट महीने में मेरा कंप्लीट होना शुरू हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपने गुरुपा का। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए। गुरुपा, आपने कहा था तेरे अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं उसके सर पे हाथ रख दिया हूँ। तो हाँ गुरुपा, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, और वो पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर इधर देख रहे हैं गुरुपा, वो रात रात भर मैं गेम खेल रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसका एग्ज़ाम का डेट निकलने वाला है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उसको उसके सर पे ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। वो सुबह सोने उठने का अपना क्रम बनाए, घर में खाना भी नहीं खा रहा है। वो आया है बाहर से कम उसे ये तो पता हो कि माँ उसके लिए कितनी मतलब फ़िक्रमंद रहती है गुरुपा। उसको प्लीज़ गुरुपा, उसके थॉट को चेंज कीजिए, उसके समझदारी लाइए, उसको समय का ज्ञान कराइए गुरुपा। गुरुपा, आप उसको, मैं बहुत डरी हुई थी 12th में क्या क्या होगा, और आपने हाथ पकड़ के निकाल दिया, बोला कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं उसको आगे ले जाऊँगा। और सचमुच आपने आगे ले गया गुरुपा। तो अभी भी गुरुपा उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको बस आप पर छोड़ती हूँ, आप उसका नैया पार कराएँ गुरुपा। संगत जी, हम सभी माँ अपने बच्चों के लिए जितना चिंतित होते हैं, बच्चे उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो बस
लेकिन अंदर-अंदर हम कितने उसके लिए दुखी होते हैं, कितने चिंतित रहते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता है। गुरुबा, उन सभी बच्चों को, उन सभी माँओं को, उन सभी बच्चों को समय का ज्ञान कराइए माँ गुरुबा, और उन्हें ये समझदारी दीजिए कि माँ-बाप अगर चिंता करता है तो वो उनके भला के लिए करता है। गुरुबा, प्लीज़ गुरुबा, अपने अपने नाती पर के सर पे हाथ रख दो गुरुबा। उसको अपनी संगत बना लो गुरुबा। गुरुबा, कुछ ऐसा करो, मैं आपके दरबार आऊँ उसे लेकर गुरुबा। गुरुबा, अपनी बेटी के चिंता का कारण आप जानते हैं कि किस चिंता में आपकी बेटी रहती है। बस पहले से तो मैं बहुत शांत हूँ, खुश हूँ, और मैं जानती हूँ कि गुरुपा मेरे सर पे हाथ रख दिए, मेरा दलदल से हमको बाहर निकाल लिए। बस अब थोड़ा-सा बच्चे का हाथ पकड़ लो गुरुपा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों की रक्षा करें गुरुपा। मेरे फैमिली, मेरे प्रियजन, सभी प्रियजन की रक्षा करें गुरुपा। क्योंकि अभी कुछ-कुछ मैं ऐसा सपना देख रही हूँ कि मैं शेयर नहीं करूँ, पर अंदर से थोड़ा-सा विचलित हो रही हूँ कि ऐसा क्यों देख रही हूँ। तो गुरुपा, आप स बोले हैं कि मैं तुम्हारे सारे प्रियजन चिंता ना करो, मैं उसके साथ हूँ, मैं सबको सँभालूँगा। तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ तो मैं सबको सँभालूँगा। गुरुपा, आप पर विश्वास है, मुझे भरोसा है, सब कुछ है गुरुपा, पर स्वप्न में कुछ ऐसा-ऐसा देख रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा वो हो रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपका मैसेज बहुत सारा आता है, पर मैं सारा तो नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन कुछ सुनती हूँ, और कुछ नॉलेज की बातें भी देखती हूँ गुरुपा। सारा जो लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए ही मैसेज है, ये मेरे लिए ही वो न्यूज़ है, तो उसे भी मैं देखती हूँ। और ये सारा कुछ गुरुपा आपके मिलने के बाद ही हुआ। मेरी आँखों की पट्टी आपने उतार दी, और मुझे समझ में आने लगा कि जो सामने है वो क्यों है, क्या है। इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी गुरुपा, मैं अनजान थी, अनभिज्ञ थी, मैं आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी गुरुपा। आपने मुझे अपनी बेटी की पट्टी उतार कर के आपने क्या किया, इतना ब्लेस किया है गुरुपा। आप मैं क्या बताऊँ, उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जब से मिले मेरी लाइफ़ चेंज हो गई गुरुपा, लाइफ़ चेंज हो गई। मैं बहुत अब शांत रहती हूँ, मेरे मन में बहुत शांति है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी अब वैसा तकलीफ़ नहीं आता गुरुपा, और उसका निदान अब दिखने लगा है, क्योंकि वो आप ही सब करवा रहे हैं। मैं तो इतनी मूर्ख, मुझे कितने कहाँ से कुछ भी पता, पर आप ही सब दिखा रहे हैं, इस मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा सब कुछ समझा रहे हैं। आप ही अपनी बेटी को, इस मूर्ख बेटी को आपने इतना समझदार बना दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे ही बच्चे को बनाइए गुरुपा, क्योंकि बच्चे के लिए भी मैं उसके आने से पहले देख चुकी हूँ कि वो एक बहुत ही चमत्कारी बच्चा है, और वो इस समाज को देने के लिए कुछ आया है, लेकिन फिर भी अभी ब्लैक मैजिक क्या-क्या करके उसकी बुद्धि को बाँधा गया है गुरुपा। आप उस बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ये करके इस कगार पे आकर आपने हाथ पकड़ा, तो मैं जाना कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन बच्चे को कम से कम अभी से ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, और उसको स उस राह पे लाइए जिस चीज़ के लिए वो इस धरती पे आया है गुरुपा। गुरुपा, आप अपनी बेटी की सारी समस्या को सुनते हैं, सारी संगत की समस्या को सुनते हैं गुरुपा। और इस धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऊपर से तो दिखते हैं कि ठीक हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत दर्द, बहुत चिंताएँ रहती हैं गुरुपा। आप उनके ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही होता है, हाँ, हमारे पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं जो कटवाने होते हैं, और वही कर्म हम कटवा रहे हैं अपने दुखों के द्वारा। तो कुछ तो गलत किए होंगे, तभी तो इस जन्म में ऐसा है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, अगर मुझसे मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो नहीं कहना चाहिए गुरुपा। गुरुपा, मैं बहुत तो सत्संग नहीं कर पाती,
क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर वो सैटरडे और ट्यूसडे मैं करूँ, पर नहीं कर पा कभी-कभी करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, पर अपनी बेटी का दिल तो जानते हैं ना, वो तो हमेशा आपका ही नाम शिव के रूप में, महावीर जी के रूप में, माँ माँ के रूप में, हर समय आप ही का नाम जपती है गुरुपा। बस नए साल में सभी संगत के जीवन में खुशियाँ अपार लाइए, सबके बच्चे ब्लेस कीजिए, सबके घर में, सबके पति, बच्चे, परिवार सब सुखी रहे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अभी मैं गुरु वंदना करती हूँ। संगत जी आप भी करें गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा जो हमारे इसका शेयर करती हैं, हमारे सत्संग को शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। नए साल में उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हुक्म हुआ कि शुक्राना मैं अभी करूं, तो सुमन आंटी जी ये शुक्राना आज 30 तारीख है, इस साल को ख़त्म होने में एक दिन रह गया और गुरु जी का हुक्म हुआ कि मेरा स्वरूप तेरे सामने आ गया है, अब शुक्राना कर, 2 दिन के अंदर तेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का एक और मैसेज आया कि मेरी मेहर और नज़र दोनों तुम्हारे ऊपर हैं, मेरी कृपा और नज़र। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो मेरी कृपा रहेगी, और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी। सो शुक्राना शुक्राना मालिक। मालिक एक शुक्राना और मैंने करना है कि हस्बैंड अंकल गए थे अपने मामा जी से मिलने, तो वो आने और जाने के सफ़र और वहाँ जहाँ जितने दिन रहना था, वो मेरे मन में थोड़ी सी बेचैनी थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि उनकी ट्रैवल और सारा कुछ जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तो जाने का सफ़र तो ठीक ही रहा वहाँ, लेकिन माहौल कुछ अच्छा नहीं रहा। इनको मन में दुख हुआ है बहुत, और वापसी का सफ़र भी बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि जहाँ 8-9 घंटे का सफ़र था वहाँ 24 घंटे लग गए, और उतरने के टाइम में लोग चढ़ने लग गए तो बड़ी मुश्किल हुई उतरने में। पर ये सब में भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है बहुत बड़ा। शुक्राना मालिक, क्योंकि वही बात है कि हम उसी समय समझ नहीं सकते कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या-क्या कष्ट अपने ऊपर ले लिए, और कैसे हमें मुश्किल वक़्त से निकाल रहे हैं। सो जितना भी शुक्राना हम करें वो बहुत ही कुछ कम है, बहुत ही कम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर हमें सभी संगत को मिलें, और उनका नाम जप और सिमरन हम सब करें, हरदम करें। नाम जप में बहुत शक्ति है। और अभी मुझे याद आया कि शुक्राना के शुरू में मैंने पावन मंत्र का जाप किया ही नहीं। सो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और सारी संगत को, सुमन आंटी जी को और बाकी सारी संगत को आने वाले साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम सबका साल जो है वो बहुत खुशियों भरा भरपूर रहे, सबकी सेहत ठीक रहे, सब फले-फूले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पर रहे। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहें। इसी के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। आज सोमवार है। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना पापा। आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं पापा की बेटी हूँ। मैं 2024 जून से आपसे जुड़ी हूँ। ये जून महीने पूरा 1 साल हो गया मेरा, 2025 में। मतलब 1 साल 6 महीने हुए आपके साथ मेरा। तो आपके साथ चल रही हूँ। मतलब आप जैसे लेके जा रहे हो, वैसे जा रही हूँ। बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ मेरे साथ हुआ है, चेंजेज़ हुआ है कि क्या बताऊँ? उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के इतने हुए हैं, इतने चीज़ें देखी मैंने। अभी सोचने का मन नहीं करता। अभी ऐसा लगता है चुप करके बैठी रहूँ, कुछ नहीं सोचना है, जो जैसा होना है हो जाए। बस, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब मेरा मेरा मन करता है थोड़ा शांति से चुपचाप कहीं जाके बैठूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ना मुझे कोई फ़ोन करे, ना कुछ, मैं चुप करके बस अपने में और अपने भगवान से मैं बात, मतलब चुपचाप उनके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। अभी ना थोड़ा थक गई हूँ मैं, हर चीज़ों से, लड़ते-लड़ते। अभी कुछ, मतलब थोड़ी शांति चाहिए, मतलब एकदम शांत कहीं जाके बैठूँ। और सबसे मेरी फ़ेवरेट जगह है, सबसे बहुत अच्छी जगह मुझे लगती है ऋषिकेश। वहाँ जाके मुझे ना, मतलब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सुकून जो होता है, वो सुकून मुझे मिलता है वहाँ। सामने गंगा जी के सामने बैठूँ, बस मैं उनको निहारती रहती हूँ। इतना अच्छा लगता है मुझे, बस वहाँ जाके मेरा मन कर रहा है सिर्फ़ वहाँ जाके बैठी रहूँ, बस उनके साथ बातें करूँ। बहुत पसंद है मुझे और मुझे सुकून भी मिलता है, मेरा माइंड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। देखते हैं, भगवान, पापा चाहेंगे तो फिर जाएँगे वहाँ। मुझे जाना है ऋषिकेश, वहाँ जाके मुझे बैठना है चुपचाप, बस बात करनी है। और मुझे वहाँ की जो प्रकृति होती है, प्रकृति मुझे बहुत पसंद है। नेचर मुझे बहुत पसंद है। नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा मुझे। कोई डिस्टर्ब ना करे, बस चुप करके, एकदम एकांत, शांत। ये मेरा मन करता है अभी। शोर-शराबा से दूर, बस मैं और मेरी जो प्रकृति है वो, माँ गंगा, बस पापा, शिव जी उधर ही हैं। हाँ, तो ये मेरा मन करता है बहुत। अभी थोड़ा मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब मैंने होके रखा था 2025। अभी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत सोच लिया और नहीं सोच पा रही हूँ मैं, जो होना है, जैसा होगा, जैसे भी होगा। ज़िंदगी तो चलती रहती है, बंद तो नहीं होती। वही, जब जब तक साँस है तब तक आस है, हम तब तक चलेंगे। तो उसी में ही हमें सब कुछ करना है, सुख भी मिलेगा, दुःख भी मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरा दुखों का जो लाइन है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसको अब कट करना चाहिए और मेरे से मैं थक गई हूँ। मुझे अभी थोड़ा प्रॉपर, मतलब माइंड रिलैक्स वाला कुछ चाहिए। तो वही अभी गो विथ द फ्लो जो होता है।
लेटिंग गो। बस वैसे जाना चाहती हूँ। और आप तो हर समय मेरे साथ हो पापा, हर पल, हर समय मेरे आस-पास रहते हो। मेरी हर बात आप सुनते हो, हर चीज़ आप सुनते हो। आप आपकी जो आपको शुकराना करना भी बहुत कम है। मतलब शुकराने से भी बहुत बड़ा वाला अगर वर्ड होता कुछ, तो वो यूज़ करती मैं। और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। अ, वो एक्सपीरियंस मैं आज थोड़ा-सा बोलूँगी। ये जो रूपाली एक टाइम थी कैसे अ, डरी हुई, सहमी हुई, किसी से बात करने के लिए भी सोचती थी। मतलब झट से बात नहीं कर पाती थी, शर्म आती थी, छुप जाती थी, बचपन में छुप जाती थी लोगों से। वही चीज़ धीरे-धीरे करके मेरे अंदर चेंजेज़ आए। शादी के बाद मैं थोड़ा खुली, बात करना स्टार्ट, लेकिन मेरे अंदर डर बैठा रहा, वो गया नहीं और वो डर बचपन से शुरू हुआ है, तो वो डर बैठ गया। पापा बहुत गुस्से वाले थे, उनके वजह से वो थोड़ा असर पड़ा। तो शादी के बाद मैं थोड़ा खुली, थोड़ा बात करी, लोगों से इंटरैक्ट करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। वो मेरे को इंटरैक्ट ज़्यादा बातें करना, बाहर जाना, फिर भी मैं अपनी ज़िद में करती थी। क नहीं करती थी ऐसा नहीं बोलूँगी, करती थी। क्यों नहीं जाऊँगी? क्यों नहीं द सिनेमा देखूँगी? तब पिक्चर्स बहुत देखती थी मैं। मैं, अपनी सिस्टर, मेरी देवरानी सब निकल जाते थे। बाकी घर का मैं सब कुछ करती थी। हाँ, मैं ज़्यादा उस टाइम गुस्सा करती थी और मुझे पता नहीं था उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे गुस्से का लेवल मतलब होता है ना एकदम पारा निकल गया था, बहुत गुस्सा, ऊपर से घर में बहुत परेशानी। तो वो गुस्सा एक टाइम ऐसा हो गया मैं चिड़चिड़ा मतलब हर बात में बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा करती थी तो चीज़ें इतना ज़ोर-ज़ोर से निकालती थी, उल्टा खुद ही अपने नुकसान कर लेती थी। पैर में एक बार ड्रायर गिर के मेरा नाखून पूरा टूट गया, खून निकलना, उसी में ही बच्चों को देखना, खाना बनाना सब कुछ उसी में होता था। लेकिन मेरे गुस्से का लेवल ना एकदम पता नहीं कहाँ चला गया था, मतलब सहन नहीं होता था मेरे को। फिर वो चीज़ धीरे-धीरे मैं जब वहाँ से निकल गई घर से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, वहाँ पे मेरा गुस्सा था, नहीं था, बहुत था और हर चीज़ में किच-किच खुद को ही मेरा दिमाग खराब होता था। ये चीज़ पूरा एकदम घुमा गुरुपा जब पापा हाथ पकड़े, पापा ने मेरे ये गुस्से का मतलब उससे पहले 2024 जून से पहले तो मैं पता नहीं क्या थी। मैं एकदम उल्टी थी। मतलब मेरे अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, मैं बहुत सोचती थी, दिमाग खराब होता था, आधा दिन खाना नहीं खाती थी, इस टाइप अपने ऊपर बहुत मैंने टॉर्चर किया है। फिर पापा के साथ जुड़ने के बाद पापा ने धीरे-धीरे मेरे को सँभाला, मेरे अंदर से गुस्सा उन्होंने निकाला। कहा कि तेरे गुस्सा इतना भयंकर है कि तेरे को एक मतलब नुकसान हो रहा है, ये गुस्सा तू बंद कर और जब भी तेरे को गुस्सा आएगा तू मंत्र जाप कर। मैं वही करती थी। तो धीरे-धीरे करते-करते मेरे में गुस्से का लेवल कम बोलूँगी नहीं कि गुस्सा नहीं है। हर इंसान के अंदर गुस्सा रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ अभी। मुझे लगता है कि जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ से मतलब चुपचाप चले जाओ, बात मत करो। ज़ुबान एकदम बंद रखो तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो मेरे पेशेंस मेरे अंदर बढ़ गए और पहले कुछ चीज़ें थी, कोई फ़ोन नहीं करता तो मेरे को दिमाग खराब होता था, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? मैं झट से फ़ोन घुमाती थी, 1 बार नहीं उठाया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसा मैं करती थी। वो चीज़ मेरे अंदर अभी खत्म। कोई एक बार मैंने किया, अगर फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, वॉइस मैसेज छोड़िए, अगर नहीं किया तो उसकी मर्ज़ी, अगर वो क आगे से उसको रिप्लाई देना है तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो ये चीज़ भी मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं और बाकी अभी खाने-पीने का मैं करती हूँ। पहले नहीं मतलब ब्रेकफ़ास्ट नाम की तो कोई चीज़ ही मेरे अंदर से उड़ गई थी। फिर अभी करती हूँ मैं खाना-पीना ठीक मम्मी के साथ हूँ, मम्मी भी नहीं खाती थी पहले। अभी हूँ तो वो सब ठीक-ठाक चल रहा है। और एक चीज़ जैसे अ, चीज़ों में कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती थी। मेरा दिमाग इधर-उधर भागता था बहुत। अभी भी होता है, लेकिन अभी कंट्रोल करती हूँ। पहले कर ही नहीं पाती थी। जैसे गुरुपा के मंत्र जाप, जैसे मैं शुरू करती थी, इधर-उधर, इधर-उधर। मैं पापा को बोलती, "पापा मेरे को हेल्प करो प्लीज़।" मेरा दिमाग एक जगह रहे।
तो वो चीज़ अभी भी मेरे को और भी करना है मेरे ऊपर काम, बहुत कुछ करना है। तो वो चीज़ भी गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत हेल्प किया। मतलब मेरे अंदर जो जितने चेंजेज़ आए हैं, वो पूरा पापा की वज़ह से। फिर पापा ने बोला तेरे अंदर जो इच्छा है वो कर। तो मैंने देखा कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, मैं पेंटिंग करना स्टार्ट किया। मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो वो भी मैंने कथक सीखना स्टार्ट किया। अभी थोड़ा 2-3 दिन बंद है, फिर दोबारा नए साल से करूँगी। प्रैक्टिस करती हूँ। बीच में 1-2 बार छूट जाती है और गाना गाने का बहुत मन करता है मुझे, तो मैं अपने आप ही गाना वो करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो गाती है, वो मुझे बोली थी कि अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखते हैं, वो भी अगर होगा तो करेंगे। तो ये सब चीज़ें खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी दुकान की वजह से सुबह मम्मी की थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, फिर बाकी का मम्मी करती है। मम्मी थोड़ा लेट करके मम्मी अभी जाती है वो ठंड की वजह से। तो ये जो चीज़ें मेरे अंदर आए हैं, ये पूरा गुरुपा की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर पूरे चेंजेज़ पूरे गुरुपा ने किया है और ये श उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उनके साथ चल रही हूँ, आगे भी जाऊँगी और जो मेरे उम, नसीब में है, जो मेरे साथ होना है, वो उनके हाथ में है, वही करेंगे और मैं 2 दिन पहले भी बहुत सोच रही थी एक चीज़ को लेकर, लेकिन आज उन्हें चलो छोड़ो, नहीं सोचना है, जो होना है होगा। तो वही आज एकदम अपने आप में ठीक हूँ। पापा भी बोल रहे थे, "मन शांत रख, सब ठीक होगा।" तो बस वही मैं सबको यही बोलूँगी कि उनके साथ ही चलिए, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। बस पापा जो बोलते हैं ना, अपना दिमाग मत लगा, मैं हूँ, सब ठीक करूँगा। तो वही उनके साथ ही चलिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। बस इसी के तो मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो गया और अभी और 2 दिन बाकी है नए साल आने में। बस ये 2 दिन सबका बहुत अच्छा जाए और नए साल सबका बहुत-बहुत अच्छा जाए। मतलब खुशियाँ लेके आए। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ और पापा आप भी बहुत अच्छे रहिए। आप और माँ आदिशक्ति मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत-बहुत मतलब सबको प्यार दीजिए, सबको हेल्पलेस कीजिए, सबके घर में बरकत हो पापा, सब बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात हेल्थ और हमारी पूरी प्रकृति खिल उठे नए साल में। तो इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय सृष्टि के मालिक मेरे विधाता, मेरे गुरु महाराज आपकी जय हो। जय संगत परिवार सबकी जय हो, सबको राम राम। जय हमारे एंसिस्टर्स और हमारे माँ बाप बहन भाई सबकी जय हो, सबका शुक्राना। संगत जी, आज मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ कि मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है ना, आज हमारी मीटिंग थी, हमारे वहाँ पे डिस्पेंसरी में मीटिंग थी आज हमारी। तो वहाँ मैसेज डाल रखा था, आयशा ग्रुप में मैसेज डाल रखा था कि अपना टीके वाला कार्ड और ड्यू लिस्ट वाला रजिस्टर लेके आओ, वो चेक होएगा। तो मैंने ना वो मैसेज देखा नहीं था, क्योंकि मैं बाबा के सत्संग में, बाबा की सेवा में ही लगी रहती हूँ। मैं अपने ऊपर कम ध्यान देती हूँ, अपने बाबा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अपने बाबा की सेवा में कोई त्रुटि या कमी ना रह जाए, बस इसमें ही लगी रहती हूँ मैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अपने काम में डिले भी हो रही हूँ, मैं पीछे। तो पर गुरु पापा मुझे हारने भी नहीं देते। मेरे गुरु पापा इतने अच्छे हैं। मेरे गुरु पापा कहीं से भी मुझे ना हारने देते हैं, ना मुझे फंसने देते हैं, हर जगह से मुझे जिताते भी हैं। इसके लिए मैं अपने गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी। तो मैं यहाँ से निकली 10 साढ़े 10 सवा 10 बजे करीब, साढ़े 10 बजे करीब। घनी देर तक तो मैं बाबा का मंदिर के बाहर खड़ी रही। वहाँ मंदिर है, हनुमान मंदिर है और भोले शंकर का मंदिर है। शिव बाबा के वहाँ मत्था टेक के
और मैं और हनुमान जी का वहाँ मत्था टेक के तिलक लगा कर मैंने कहा जब तक कोई गाड़ी नहीं आती तब तक मैं यहाँ बाबा के दर्शन निकल लूँ मंदिर में। बिल्कुल सेम मंदिर के बाहर ही खड़ी थी मैंने दरवाज़ा खोल के बाबा को मत्था टेका, नहीं बाबा कोई वाहन भेज दो, तो कोई वाहन भेज दो बाबा, आज मीटिंग है हमारी। और मैंने मैसेज जब भी नहीं देखा उसमें क्या मैसेज था उसमें आशा ग्रुप में, क्योंकि मैं बहुत कम चेक करती हूँ उसमें। तो मैंने मत्था टेक के मैं बाहर को आ गई। फिर घनी देर तक खड़ी रही। बाइक वाइक वाले जो निकल के जाते हैं फतेहपुर तक, कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलो भी दूर होगा, 3-4 किलोमीटर ही दूर है। बाइक वालों को हाथ देती रहती हूँ मैं, जैसे बहुत से रोक लेते हैं बेचारे, बहुत से नहीं रोकते, चुप निकल जाते हैं। तो मैंने कई बाइक वालों को हाथ दिया और रुके ही नहीं। तो मैंने फिर अपने पति को फ़ोन करा, मैंने कि प्रियंका के पापा कहाँ पे हो, तो मेरे को वहाँ छोड़ आओ डिस्पेंसरी, कोई रोक ही नहीं रहा बाइक, ना कोई टेम्पो आ रहा है यहाँ पे। तो बोले अच्छा चल तो मैं आ रहा हूँ। वो बेचारे काम कर रहे थे वहीं पास में ही, बिल्कुल 100 कदम की दूरी पे वो काम कर रहे थे। कह रहे मैं तो बाइक आज लाया नहीं, घर पर ही है बाइक मेरी, और चल तो कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ अभी। तो उन्होंने वहीं घी वाले की दुकान थी बगल में, उस घी वाले की बाइक मांग के तो ले आए और मुझे छोड़ने के लिए चले गए। इसके लिए भी मैं अपने पति अंकल का शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पापा ने मेरे गुरु पापा के रूप में पति अंकल बन के आ गए और मेरी मदद करी। इसके लिए भी अपने गुरु पापा का, अपने पति अंकल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वहाँ गए तो वहाँ साइन वैन हुए हमारे, सब आई हुई थी, सब अपने अपना रजिस्टर लाई हुई थी। मैं रजिस्टर नहीं लाई थी। वहाँ जाके कहते हैं कि रोहतास आया हुआ है सबके ड्यू लिस्ट और टीकाकरण, जिसमें हम टीके चढ़ाते हैं बच्चों के, 0 से 5 साल तक के बच्चों के टीके चढ़ाते हैं उसमें। कहते रजिस्टर चेक करना। मैं तो नहीं लाई। राज दुलारी भी नहीं लाई थी, उल्टी गई। अब टेम्पो में बैठ कर उल्टी आई लेने के लिए। मैंने कहा मैं तो उल्टी नहीं जा रही। अब मैंने गुरु पापा अब आप देखना, आपके बच्चे की लाज बचनी चाहिए, कैसे भी करो कुछ भी करो। तो संगत जी एक बार और रजिस्टर चेक करने के बुलाया था, तो मैं गई नहीं थी, मेरी पेमेंट काट दी थी। मैंने कहा आज तो पक्की संतोष तेरी पेमेंट कट जाएगी। आज भी तू नहीं लाई रजिस्टर, रोहतास की नज़रों में रह जाएगी तू, रोहतास सर की नज़रों में रह जाएगी तू, कि ये तो कभी रजिस्टर चेक ही नहीं करवाती ना, इसके रजिस्टर कभी पूरे होते। मैंने कि इस महीने की मेरी पेमेंट चढ़ाएगा नहीं अब की बार भी, देख लेना। मैंने फिर गुरु पापा से अरदास डाली, गुरु पापा कुछ भी करो, कैसे भी चमत्कार करो, आज मेरी लाज बचा लो बाबा। मैंने तो वो मैसेज देखा नहीं, आशा ग्रुप में जो डाल रखा था रजिस्टर लाने का, और ना मैं लाई। और मेरा तो पति अभी छोड़ के गया, मैं तो उनसे भी कह देती, मैंने कि वो भी ले आते, ज़्यादा दूर भी ना है, 3-4 किलोमीटर ही दूर है हम। तो मैंने कोई बात नहीं, देखी जाएगी। कहते लंच में आएंगे वो, जब मैं उनसे फ़ोन करके कह दूँगी तो रजिस्टर भिजवा देना मेरे, ले आएंगे वो रोटी खा के जब आएंगे तो। कितनी दूर है, ज़्यादा दूरी भी नहीं। तो संगत जी मैं ना तो इतने घनी देर तक तो वहाँ पे लड़कियाँ नोई बैठी रही, चें चें मैं करती रही, और मैं तो अपने गुरु पापा का सत्संग सुनती रही बैठ के। मैंने कि तुम चें चें मैं करो, मैं अपने गुरु पापा से कनेक्ट होकर अपने गुरु पापा का सत्संग सुनती हूँ। तो मैं सत्संग सुनती रही। तो मैंने गुरु पापा से कहा, मेरे तो दिमाग में आ गया। मैंने कि सारी लड़कियाँ बोल रही, कोई मैसेज में पढ़ा नहीं था तुमने रजिस्टर लाने सबके चेक होंगे, हम तो सब लाए। मैंने कि मैं नहीं लाई। चलो देखी जाएगी, अब तू बैठ जा संतोष, पीछे कुर्सी पे जाकर बैठ गई, मैं तो कुर्सी पे। तो मैंने सत्संग सुनती रही बाबा का, बाबा से अरदास करती रही, बाबा कुछ भी करो, चमत्कार करना है आज आपको। आपकी बेटी रजिस्टर नहीं लाई और आपकी बेटी नज़रों में आ जाएगी है, और आपकी बेटी की लाज बचानी है आज आपको। कैसे भी करो, कुछ भी करो, इनके किसी के भी रजिस्टर चेक होने नहीं चाहिए गुरु पापा। इनके सबके चेक हो और सबके चेक हो गए, मेरा रह जाएगा तो मैं नज़रों में आ जाऊँगी सबके, कि ये कभी रजिस्टर चेक इन कराती फिर मेरी तनख्वाह कटेगी। गुरु पापा चमत्कार कर दो। तो मैं सत्संग सुनती रही, देखती रही। शॉर्ट सत्संग देखे मैंने, तो नीम करौली वाला बाबा का सत्संग देखा मैंने। उसमें आया था कि अगर तुम्हारे कहीं मुसीबत है, कहीं फंस रहे हो, या तुम्हारी कोई काम में देरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इस मंत्र को जाप करो। या फिर तुम्हें किसी विपदा से निकलना है तो इस मंत्र को जाप करो, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। तो उसने कई बार कहा कि भाई इस मंत्र का जाप करते रहो और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, और शिवाय जो शिव बाबा हैं तुम्हें ऐसे निकाल लेंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो संगत जी मैं ना दीपा छिब्बर का वो आ रहा था सत्संग गुरु जी महाराज का, कि पुत्र मैं तेरे घर ही कॉल लगा रहा तेन खुशखबरी देने वास्ते। मैं वो सत्संग सुनती भी रही और मन ही मन में AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय करती रही। तो संगत जी मैंने कहा, मैं फिर गुरु जी से अरदास, मैंने गुरु जी रोहतास सर को कैसे भी करो, इनको अर्जेंट कॉल लगवाओ, कहीं से भी किसी भी जरिए से, कैसे भी जरिए से अर्जेंट कॉल लगवाओ इन्हें, और क्या नाम, ये रजिस्टर चेक करने ना पाए आज। मैं गुरु जी से यूँ ही कहती है। तो संगत जी बात करते करते रोहतास सर जब हमें कुछ समझा रहे थे, एक और सर थे दंत चिकित्सक थे, वो भी समझा रहे थे कुछ। तो रोहतास सर के पास ऊपर से कोई कॉल आई, उन्होंने कहा कुछ ऐसी इमरजेंसी कोई कॉल थी। तो उन्होंने फिर वो कॉल सुन के फिर हमें बोलने लगे, समझाने लगे। फिर मैं बाबा से, मैंने बाबा कुछ भी करो आज, कैसे करो, रजिस्टर चेक होने नहीं चाहिए, आपके बच्चे की लाज बचानी है आज आप। शिव बाबा आपको कुछ भी करना है, मेरे गुरु महाराज अपने पुत्र की जान बचानी है आपको, आज पुत्र की लाज बचानी है आप।
मेरे गुरु पापा आप ही हो, मेरे आगे पीछे मेरे माँ बाप बहन भाई सब कुछ आप ही हो। गुरु पापा आज ऐसा चमत्कार दिखा दो कोई रजिस्टर चेक ना हो। तो संगत जी यकीन मानिए एक और कॉल आई रोहतास सर को, वहीं खड़े खड़े समझाते समझाते तो उनका मन बदल गया। और मन बदलने के बाद वो कहने लगे कि जो जो तुम्हारे टीके डिले हो रहे हैं, जो छूट रहे हैं बच्चों के टीके जो तुमने रजिस्टर में नहीं चढ़ाए हैं, उन टीकों को अपनी एनम बहन जी के रजिस्टर में से पूरा करके और अच्छे से इनको चढ़ा के जब मुझे चेक करवाना, और मैं अगले महीने तुम्हारा चेक करूँगा, सारा रिकॉर्ड देखूँगा। तो ये बात कही तो मेरा इतने धन्यवाद दिया मैंने अपने गुरु जी को, इतना शुक्राना करा मैंने कि वाह गुरु पापा आप छा गए हो, तुसी पाजी तुसी छा गए। मैंने कि पापा जी तुसी छा गए। मैंने कि गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बच्ची की आज लाज बचा ली गुरु महाराज, अन्य आपकी बच्ची दोबारा दूसरी बार आती इसमें घेरे में और दूसरी बार भी पेमेंट कट जाती मेरी। हाँ गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इतने में जो दंत चिकित्सक थे वो समझा रहे थे, वो कह रहे चलो अब जाओ घर, कोई बात नहीं, अपने अपने रजिस्टर को पूरा करके रखो, कब कौन आ जाए चेकिंग के लिए, और अगले महीना सारे अच्छे से लाना, पुराने साल का पुराने में ही छोड़ दो और नए साल की नई तैयारियां शुरू करो। उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे इतनी खुशी हुई, अपने गुरु पापा को मैंने बहुत धन्यवाद दिया। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे मालिक मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु महाराज। तो फिर मैं संगत जी मैं तो बाहर निकल के आ गई, तो मैंने जो हमारी फैसिलिटेटर मैंने उससे पूछा, मैंने बहन जी छुट्टी हो गई? तो कहीं हाँ घर जाओ छुट्टी हो गई, कोई रजिस्टर चेक नहीं हो रहा आज। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा आज मेरे गुरु पापा ने मेरी जान बचा ली, मेरी लाज बचा ली। मेरे मालिक मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव बाबा आप नहीं जानते, आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हो। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बड़ा वाला वेलकम मेरे गुरु महाराज। सारे संगत परिवार के लिए नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। हमारे माँ बाप बहन भाई सबको नया साल मुबारक हो प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम बाहर आ गए सड़क पे से, फिर मैंने गरम गरम मूंगफली और रेवड़ी भून रही थी, मैंने कहा मुझे गरम गरम मूंगफली रेवड़ी दे दो। वहाँ समोसे वमोसे की दुकान थी। मैं तला भुना कम खाती हूँ संगत जी, बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि इन तली भुनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तो गंदगी सड़क के सहारे धूल चिपकती है, वही लोग खाते हैं, समोसे बाहर लगा के रखते हैं, वही धूल मट्टी हमारे पेट में जाती है, वो बीमारी बनाती है, इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर का खाना। मैं तो बस ये भुनी मूंगफलियाँ तो इसलिए खा लेती हूँ मैं, वो और वो रेवड़ियाँ जो पन्नी में पैक करे हुई रखी रहती है, एक बार बन के आती हैं तो सफाई से रखी रहती हैं। मैं अपने गुरु पापा के लिए वो रेवड़ी मूंगफली लेके आई। मैंने गुरु पापा आप मूंगफली रेवड़ी चावो और बैठो आराम से। मैं आते ही पहले अपने बाबा का मत्था टेका मैंने गुरु पापा के चरणों में। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, आज तो आपने मुझे बचा लिया, अपनी बच्ची को बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं उसके बाद मैंने अपने गुरु पापा को सबसे पहले भोग लगाया, मैंने रेवड़ी और मूंगफली। मैंने गुरु पापा लो चावो गरम गरम मूंगफली रेवड़ी, और हम भी फिर चावने लगे बाहर बैठ के, दोनों माँ बेटी। धूप सी निकल रही थी, चटाई बिछा के हम बाहर बैठ गए। इतने में फिर इसके पापा आ गए, फिर हमने उन्हें भी दी, उन्होंने भी खाई, फिर वो खाना पीना खा कर फिर चले गए काम पे। और मैं तो सत्संग सुनती रही। फिर मैंने सोचा मैंने कि मेरे गुरु पापा का मैंने सत्संग शेयर नहीं करा, तो मैंने कि आज ऊपर आके मैं कमरे में बैठ के अपने पापा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा बहुत बहुत वेलकम, आप हमारी जान बचाने के लिए, हमारी इज्जत लाज बचाने के लिए। गुरु पापा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर उसका शुक्राना गुरु जी। जो पुरानी साल हमारी जो भुगवाई या कटवाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितने भी आए गए हमारे जीवन में उन सबका शुक्राना मेरे प्रभु मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे गुरुपा के चरणों के पास बैठ के सुमन जी के चैनल पर भेज रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने मेहर हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। गुरुपा के पवन महामंत्र से आज का सत्संग आरंभ करना चाहेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप का मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर क्षण जो है हमारे सारे अंग हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे सभी बात बिन बोले ही जान जाते हैं। आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपने बहुत तरह से हमें अपने से जोड़ा। जब 2023 को दिसंबर 27 से आपने अपनी संगत में बनाया, उसी दिन से जीवन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो गया और आप हर पल हर क्षण जो है हर संकटों से हमें बचाते थे और बचाते रहे हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जब से गुरुपा आए हैं जीवन जो है बहुत सुरक्षित महसूस होता है, कुछ भी डर नहीं लगता। बस गुरुपा हमेशा हमको हर चीज़ हमारे लिए बेहतर करते जाते हैं। इसके लिए भी कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। कृपा आपने हमें अपने सत्संग में बुला रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है। वहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है। आपने मेरी बेटा-बेटी दोनों को ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना है। बस आपने जल्दी से अपनी संगत बना लें। बस ये तो ख़ैर आप जब कृपा चाहेंगे तभी करेंगे। शायद उनका भी टाइम नहीं आया हो या जो भी है, तो वो इस तरह से जब कृपा का मेहर होती है तो सब कुछ होता है। जैसे आपने मेरे हस्बैंड अंकल को अपने से जोड़ा, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। वो हर चीज़ में आपको ही महसूस करते हैं। कुछ भी चीज़ होती है तो वो कहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा आपसे बहुत बहुत शुक्राना वो भी उनकी तरफ से मैं करना चाहूँगी कृपा। वो हमेशा कहते हैं जब से कृपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं बहुत चीज़ों में बहुत डिफरेंस महसूस करता हूँ। वो कहते हैं मैं पहले कभी भी कहीं जाता था तो मुझे कोई बस या गाड़ी के वेट करने के लिए बहुत टाइम लगता था और वो उसी समय चल जाती थी और जब मैं पहुँचता था स्टॉप में तो मुझे बहुत वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी जब भी मैं पहुँचता हूँ तभी गाड़ी आ जाती है, वेट भी नहीं करना पड़ता और मुझे जगह भी मिल जाती है। और जैसे भी अंदर जाना होता है, जैसे भी वो किसी चीज़ का कोई काम का वेट करते हैं तो वो काम भी बहुत स्मूथली हो जाता है। कहीं मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में भी बोलते हैं वो कृपा का मुझे मतलब कि आशीर्वाद महसूस होता है। तो कृपा बहुत-बहुत शुक्राना है। वो कहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना है। आपने उन पे अपना जो मेहर भरा हाथ रखा है उसके लिए मैं आपका दिन रात शुक्राना करूँ वो भी कम है। तो कृपा इस तरह से मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। वो भी कहीं भी होता है जाना तो उनको बहुत मतलब टाइम पे जाना पसंद है। तो वो इसी तरह से वो कभी भी जाते थे पहले तो बहुत इरिटेट होते थे। कभी मुझे कहते हैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ तो बस जिस समय मैं पहुँचता हूँ उससे बस चली गई और खड़े रह जाते थे। अभी वो बोलते हैं कि बस जैसे मैं जाता हूँ तो एकदम बस मिल जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं घर आई और मैं ऑफ़िस से घर आई और बाय चांस मेरी जो की थी वो उस दिन मेरे साथ की मेरे घर के अंदर ही छूट गई और बच्चे घर पे नहीं थे और मेरे हस्बैंड अंकल भी चाइना में थे और वो वहाँ से आ रहे थे। लेकिन वो जब भी आते थे उनको बहुत देर में पहुँचते हैं जैसे रात को, तो मैं जैसे जल्दी पहुँच गई तो मैंने अपने हस्बैंड का को फ़ोन किया कि मैं चाबी मेरे पास है नहीं है, मैं अंदर कैसे जाऊँगी? ये तो फिर और काम में लेट होएगी। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम वेट करो मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे मतलब बस 1 घंटा मतलब आधा पौना घंटा लगेगा वेट कर लो। तो मैं जैसे नीचे सिक्योरिटी में जो है वहाँ पर बैठ गई और वेट करने लगी। मैं आई थिंक मुझे 5-10 मिनट ही हुए होंगे, मेरे हस्बैंड अंकल आ गए। मैंने बोला, "अरे! आप तो बोल रहे थे मैं इतना दूर हूँ और आप जल्दी कैसे आ गए?" तो वो कहते हैं जैसे मैं बस के लिए जाता हूँ तो बस तो निकली थी जैसे ही बस निकली तो मैं भागा, तो बस वाले ने यहाँ पर अगर बस स्टॉप से आगे चल जाती तो रुकती नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले मैं जैसे वहाँ पर पहुँचा, मैंने हाथ दिया और मैं भागा बस के पीछे तो बस के ड्राइवर ने बस रोक दी जबकि वो स्टॉप से आगे जा चुकी थी और वो उसने बस रोकी और वो रुकी रही और मेरे हस्बैंड अंकल भागकर उस पे बैठ गए। वो कहते हैं जैसे अगर मैं मतलब बस चल जाती है तो दोबारा जो है वो 45 मिनट में आती है, तो वो बस उसी समय उनको मिल गई और 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए। तो इसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत-बहुत मतलब शुक्राना करूँगी और गुरुपा टाइम पर आ गए, तो वो मुझे बोले कि ऐसा कभी नहीं होता, ये चाइनीज़ ड्राइवर वो स्टॉप से आगे कभी भी बस नहीं रोकते। रियली यहाँ पर भी ऐसे होता है, कहीं पर भी जब अगर कहीं कितना भी अर्जेंट हो तो वो रोकते नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि जो मेरे को पता नहीं मैं यहाँ से मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी बार-बार, हे गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल जल्दी से आ जाएँ, नहीं तो मैं यहाँ पर कितनी देर बैठूँगी और मेरे को लेट हो जाएगी। तो वो बोलने लगे तुम यहाँ पे से प्रार्थना कर रही थी शायद तो इसीलिए कृपा ने मुझे मतलब फटाफट बस दे दी। तो इसके लिए भी छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसके लिए भी कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। तो कृपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत संकटों से बचाया। उनके पहले उनको बार-बार माइग्रेन हो जाता था, सर में दर्द मतलब होता था उनके जैसे कभी कुछ मतलब बहुत पहले तो बहुत होता था लेकिन बाद में वो थोड़ा कम होने लगा। लेकिन अभी कृपा जब से मिले हैं तब से वो एकदम खत्म ही हो गया है। इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। उनको जब भी माइग्रेन होता था वो खाना नहीं खाते थे और उनको फिर वॉमिटिंग होती थी तब जाके वो ठीक होता था। तो सोते थे रात को तब सुबह ठीक होता था। तो लेकिन अभी कृपा की बहुत मेहर है वो सब
वो एकदम ख़त्म हो चुका है। इसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपने कितने संकटों से उन्हें जो है ठीक किया है, इसके लिए भी शुक्राना है। मुझे भी पहले जैसे वेदर चेंज होता था, मेरे हस्बैंड को तो छींकें बहुत आती थी, उसमें भी उनके बहुत चेंजेस हुए हैं। और जैसे मुझे तो ख़ैर बहुत ही कम होता था, लेकिन जैसे कभी अगर मुझे कभी अगर खाँसी हो जाती थी, कभी हो गई साल में, 2 साल में 1 बार कभी मुझे अगर हो गई, तो वो ठीक नहीं होती थी लंबे टाइम से। लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं, वो सब बिल्कुल बंद हो गया है। वो पहले पहले वैसे कभी-कभार हो जाती थी, कभी साल में 1 आध बार कभी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो गुरुपा, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत तरह से हेल्थ बख्शी है। गुरुपा का तो मैं शुक्राना जितना भी करूँ, उतना ही कम है। तो गुरुपा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इस तरह से सभी पर मेहर करना। मेरे हस्बैंड अंकल आपका दिन-रात शुक्राना करते हैं, लेकिन उन्हें शुक्राना करना इस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम करते हैं। तो मैं उनकी तरफ से आपको दिलो-जान से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग का यहीं पर समापन करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने हमारे सब संकट को दूर किया, ऐसे सबके संकट को दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सभी संगत के हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ जोड़ना, ताकि वो भी, दोनों हस्बैंड वाइफ जब जुड़ते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो इसी तरह से आपने हमको जोड़ा, और हम दोनों जो साथ में ही रोज़ सत्संग जाते हैं, तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। हमेशा हम गुरुपा के पास बैठ के वही चाय वगैरह पीते हैं, बात करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुपा, इसी तरह से सभी संगत के को भी इसी तरह से अपने से जोड़ना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो, सिर्फ गुरुपा, संगत जी और सुमन जी में क्षमा कर देना। मेरे सत्संग को अपने इसी चरणों में स्वीकार करना। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करते हैं। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी के चैनल पे। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी की कृपा। आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती है आपकी बेटी। शु प्रणाम स्वीकार कर लीजिए गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन। जय गुरु जी की सुमन आंटी। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सर्वत्र भला करना मेरे गुरुपा, सर्वत्र भला करना। सब सुखी रहें, सब सुखी रहे। सबके घर में खुशियाँ रहे। शुक्राना, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मेरे गुरुपा, परमपिता परमेश्वर, गुरुपा मेरे त्रिकालदर्शी, हमेशा सबको खुशियाँ देने वाले, सबके कष्ट हरने वाले। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि है शुक्राना, परमपिता परमेश्वर। संगत जी, अभी रात में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बहुत ज़्यादा, एकदम से ही बहुत बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। मैं एकदम से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मैं, संगत जी। लग रहा बस अब तो बिल्कुल ही हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी दवाई भी खा ली, फिर भी आराम ही नहीं मिल रहा था संगत जी। दर्द से बस लग रहा कि बस सुबह को उठ ही नहीं पाऊँगी मैं, लग रहा है मुझे। फिर संगत जी एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैंने उस दिन सत्संग सुना था। इस सत्संग में एक बहन, गुरु बहन ने बताया था कि गुरुपा की जोत वाला घी लगाने से जो वो जोत वाला घी बचता है, गुरुपा की जो जोत जगाते हैं, तो जो घी बचता है लास्ट वाला, अगर गुरुपा का महामंत्र बोल के उसे लगाओ तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। संगत जी, मैंने फिर वो लगाया और गुरुपा का महामंत्र 7 बार बोला। फिर 10 से 15 मिनट के बाद फिर थोड़ा आराम मिला मुझे। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं संगत जी। इतना दर्द कि बस एकदम से ही अचानक तबीयत ख़राब हो गई मेरी। पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से इतना दर्द, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और संगत जी,
पता नहीं गुरुपा का मैसेज आया हुआ था कि बेटा अब तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तेरे को दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। तो जितना हो सके उतना गुरु मंत्र का जाप करा कर। जितना ज़्यादा जाप करेगी उतनी ज़्यादा बीमारियां कटेंगी तेरी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो कोशिश करती हूँ संगत जी, पर पता नहीं ज़्यादा नहीं हो पाता मेरे से। मेरे को पता नहीं क्यों नींद आती है संगत जी। इसका मैं क्या निवारण करूँ, मैं भी समझ में नहीं आता। मैं गुरु मंत्र मंत्र जाप करूँगी तो थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ मैं संगत जी, तो उसके बाद मेरे को पता नहीं क्यों नींद आने लगती है और फिर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ। मुझे कुछ खुद ही पता नहीं चलता, फिर नींद आ जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ ये क्या हुआ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे, अपनी बेटी को कान पकड़ के माफ़ी चाहती है आपसे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना सोऊं, पर पता ही नहीं चलता, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि का शुक्राना। आपकी बेटी माफ़ी चाहती है आपसे, पूरी कोशिश करेगी। अमृत वेले में भी जल्दी करने की कोशिश करती है। आपका आशीर्वाद है, आप ही कराओगे, जो भी कराओगे आप ही हाथ पकड़ के कराओगे गुरुपा। आपकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता है। आप ही कराओगे, सब आप ही कराओगे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का आया था, मैसेज आया हुआ था कि नई साल में तो ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी बेटा। तेरा नए घर की तैयारी हो रही है, तुझे नया घर मिलेगा, नई कार आएगी तेरी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। परम पिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती है आपकी बेटी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेटी को आपके चरणों की भक्ति चाहिए। आप चाहिए गुरुपा, आप चाहिए आपकी बेटी को। मेरे गुरुपा चाहिए, गुरुपा के चरणों की भक्ति चाहिए गुरुपा। मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्यार बढ़े, दुनिया में ढेर सारा प्यार हो गुरुपा, सबके घरों में सुख शांति हो, बस यही चाहिए गुरुपा। और आपकी बेटी बस आपके चरणों में रहे। आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहो, आपका प्यार दुलार मिले आपकी बेटी को। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपकी बेटी को आप चाहिए गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरुपा आप आपका मैसेज आया हुआ था ना गुरुपा कि बेटे के ऊपर कोई कष्ट आया हुआ। आप हो ना, आपके बच्चे हैं, आप ही देखोगे, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। आपके बच्चे हैं, जब आपका हाथ है उनके सर पे और आप हो तो क्या चिंता है। उनके नानू उनके साथ हैं रक्षा करने के लिए, याद दुलार करने के लिए, तो मुझे क्या चिंता है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमेशा ऐसे अपने प्यार को दुलार रखना अपनी बेटी को। शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को इतना प्यार देने का शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी गलती है उसको क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सिमरन आंटी, जय गुरु जी की। शुक्राना 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 शुक्राने की हाजिरी दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना शुक्राना शुक्राने की हाजिरी माँ की तरफ से आपके कमल चरणों में गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राने की हाजिरी पति अंकल की तरफ से आपके कमल चरणों में गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राने की हाजिरी आपकी बेटी की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना 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 जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना सीताराम 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 सीताराम। सबका भला करना करना गुरुपा, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला अरे सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला अरे सर्वत्र भला। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। तारीख आज 20 वार मंगलवार, टाइम 4 शाम के 4 बज रहे हैं यहाँ।
मेरा शुक्राना सत्संग तो ये है कि हम यहाँ पे मंदिर जाते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं। शनिवार को गए थे, उस दिन तारीख थी 27। उस दिन हम येलो कलर का सूट पहन के गए थे। तो एक आके पूछते हैं कि आज आपकी तरफ से कीर्तन है, सत्संग है? हमने बोला नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। उसके बाद जिन्होंने कीर्तन करवाया था वो लेट आए। 5 बजे एग्जैक्ट एकदम कीर्तन शुरू हो जाता है सत्संग, तो वो लेट आए। तो वही लड़का आके मुझसे कहता, आज सत्संग की जो घी वाली जो दिया बत्ती जलती है वो आपको जलानी है। हमने गुरुजी से लास्ट मंडे मांगी थी एक सेवा कि गुरुजी छोटी सी सेवा मुझे भी दीजिए, मैं तो चली जाऊंगी इंडिया वापस। तो उस दिन मुझे ये सेवा गुरुजी ने दिलाई, इसका मैं शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना कि हमारा सत की तरफ से सत्संग भी नहीं था और मुझे सेवा करने का मौका भी मिला। उसके बाद गुरुजी का मैसेज है कि मैं तुम्हें धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो आज मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, 30 तारीख मंगलवार को वापस जा रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला मैं तुम्हें धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो धार्मिक यात्रा हमारी अमृतसर की 3 तारीख को हम लोग सब लोग निकलेंगे, 3 जनवरी को, और हम पहुँच के 3-4 दिन रुक के और फिर आएंगे वहाँ से। तो ये गुरुजी जो सब कहते हैं वो करते हैं, ये मैं मान गई। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को अभी विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन जी, आपको भी जय गुरुजी। आप हमारे हर सत्संग को शेयर करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए थैंक यू। और जय गुरुजी आपको मैं बोलती हूँ और सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।